أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ مہینے مقدس جو ہے 11ویں شریف کا ہے۔ بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز میں ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی۔ ہمارے امام صاحب قبلہ بہت ہی بہترین آواز اور بہت ہی اچھے آواز کی مالک ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کی آواز کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بہت ہی اچھے انداز میں سنا رہے تھے اور آپ سماعت بھی فرما رہے تھے۔ ہے کہ آج ہمارے گاؤں کے سماج میں چھوٹا چھوٹا بچہ بھی نعت خوان رسول بن گیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف اس کے دل میں ایسا بسا ہے، اللہ کا خوف اس نے اپنے دل میں ایسا بسا لیا ہے کہ اب دنیا کی کوئی خوف اس کے دل میں نہیں ہے۔ نعت پاک کا من کبت کا چنا سار سماعت فرمائے، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ کچھ دیر بات کروں گا اور غوث اعظم کی شان میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور میرے بعد ایک بہت ہی اچھے مقرر آپ کے امام و خطیب حضرت علی حسین صاحب قبلہ موجود ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد اختتام کی طرف پہنچوں گا۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، فرما کے کنبے زینی، فرما کے کنبے زینی مردے جلا رہے ہیں،
गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे। और आगे शेर समाप्त फरमाए कि फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू। मैं समझता हूँ कि इस शेर में कोई खामोश नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। ये शेर ही कुछ ऐसा है, समाप्त कीजिए आप कि फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू। फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू। लगता है गौसे आज़म, लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं। लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं। फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू। लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं। छाया हुआ है हर सू, सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। और आगे शेर समाप्त फरमाए कि पीरान पीर है वो रोशन ज़मीर है वो। पीरान पीर है वो, पीरान पीर है वो रोशन ज़मीर है वो। बेटी को एक पल में, बेटी को एक पल में बेटा बना रहे हैं। बेटी को एक पल में बेटा बना रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। और एक शेर समाप्त फरमाए कि तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते। हजरत बहलुल दाना एक अल्लाह का वली है और हजरत जुबैदा खातून एक बादशाह की बीवी है। हजरत बहलुल दाना एक मर्तबा जमीन से मिट्टी उठाई और बालू रेत से एक मिट्टी का घर बनाया और बना रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, बना रहे हैं, उसको फिर बिगाड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं। उधर से जुबैदा, मलका जुबैदा की गुजर हुई। उसने कहा ए हारून रशीद क्या बना रहे हो, ए बहलुल दाना क्या बना रहे हो? उसने कहा जन्नत बना रहा हूँ, जन्नत। हजरत जुबैदा ने कहा बेचोगे? कहा मैंने इसलिए बनाया है कि इसको मैं बेचूंगा। जुबैदा बोली क्या कीमत लोगे? हजरत बहलुल दाना ने फरमाया 1 दिरहम लूंगा। 1 दिरहम में हजरत बहलुल दाना से हजरत जुबैदा ने जन्नत खरीद ली, क्योंकि हजरत बहलुल दाना ने फरमाया कि मैं जन्नत बना रहा हूँ, जन्नत। जुबैदा कहने लगी बेचोगे? हजरत बहलुल दाना ने फरमाया हाँ मैंने इसलिए बनाया है कि मैं इसे बेचूं। हजरत जुबैदा ने 1 दिरहम में उसे खरीद लिया और खरीदने के बाद वापस जाती है अपने घर और अपने शोहर से कहती है ऐ मेरे शोहर नामदार, मैंने आज एक दिरहम में एक जन्नत खरीद ली है, अपने नाम पर एक जन्नत करवा ली है, वो बहलुल दाना से मैंने खरीदी है। हारून रशीद बादशाह था, उसने इस बात को मजाक में उड़ा दिया।
लेकिन जब शाम हुई है, रात आई है, बहलुल दाना ने जो जन्नत बेचा था, हारून रशीद सोया है, अपने महल में सोया है, और रात में ख्वाब में देखता है कि हारून रशीद जन्नत पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जन्नत पहुंचने के बाद जन्नत में टहल रहे, देख रहे हैं ये महल फला का, ये महल फला का, ये महल फला का, ये महल फला का। पहुंचते चलते चलते उस महल पे पहुंच जाते हैं जिस महल के ऊपर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने पूछा, ए फरिश्तों, ये किसका नाम है? फरिश्तों ने कहा, ये जुबैदा का नाम है, ये तुम्हारी बीबी है, उसका महल है। हारून रशीद ने उसके अंदर जाना चाहा, अंदर घुसने की कोशिश किया, अंदर दाखिल होना चाहा, फरिश्तों ने रोक दिया। हारून रशीद ने फरमाया, ए फरिश्तों, रोकते क्यों हो? ये मेरे महल मेरे बीबी के नाम के है, ये मेरे बीबी की जायदाद है, ये मेरे बीबी की इक्तदा में है, ये महल मेरी बीबी के नाम पर है, मुझे रोकते क्यों हो? फरिश्तों ने कहा, ए हारून रशीद, वो बीबी तेरी दुनिया में होगी, ये जन्नत का महल है, ये तेरे बीबी के नाम पे है, इसमें हक सिर्फ तेरी बीबी का है, तू नहीं जा सकता है, तुम इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। कोई अगर दाखिल होगा वो तेरी बीबी होगी, इसके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। बहलुल दाना की आंख खुलती है, बेदार होते हैं, सुबह सूरज निकलता है, हारून रशीद की बारगाह में पहुंचता है और जाके क्या देखता है? हारून रशीद क्या देखते हैं? बहलुल दाना के दरबार में पहुंचा है। बहलुल दाना वही मिट्टी की घर बना रहे हैं, मिट्टी का खिलौना बना रहे हैं और उजाड़ रहे हैं। हारून रशीद ने कहा, ओ बाबा, क्या बना रहे हो? बहलुल दाना ने कहा, मैं जन्नत बना रहा हूं। जन्नत का बेचोगे? कहा, मैं बेचूंगा, इसलिए मैंने बनाया है कि इसे मैं बेचूं। हारून रशीद ने कहा, क्या कीमत लोगे? बहलुल दाना ने फरमाया, तुम्हारी आधी सल्तनत, तुम्हारी आधी सल्तनत। हजरत बहलुल दाना के सामने हारून रशीद ने कहा, ए बहलुल दाना, कल तो तुमने जन्नत बनाया था और बेचा भी था, उसकी कीमत 1 रुपया था, 1 दिरहम था, लेकिन आज आधी सल्तनत क्यों मांगते हो? बहलुल दाना ने फरमाया, ए हारून रशीद, कल तुम्हारी बीबी जो आई थी वो बगैर देखे खरीदी थी, आज तुम देख के आ रहे हो। जन्नत में महल तेरे बीबी के नाम पर लगा है, तेरे बीबी के नाम पे महल बना है, तुम देखने के बाद खरीदने आए हो, इसलिए तुम्हारी आधी सल्तनत लगेगी। मेरे दोस्तों, देखो, ख्वाब देखा है हारून रशीद ने, देखा है ख्वाब देखा है हारून रशीद ने, देखा है जन्नत देखा है हारून रशीद ने, देखा है। बहलुल दाना को खबर हो गई, बहलुल दाना को मालूम हो गया कि इसने देख के आया है, ये जन्नत का सौदा देख के करने आया है, इसलिए फरमाते हैं, ए हारून रशीद, तेरी आधी सल्तनत में लूंगा, तब तुम्हें जन्नत दूंगा। पछता के, हार मान के हारून रशीद ने आधी सल्तनत दे दिया, उसके बाद जन्नत खरीद ली। हजरत बहलुल दाना ने आधी सल्तनत को कबूल भी किया और उसे वापस भी कर दिया और फरमाया, ए हारून रशीद, मुझे सल्तनत की जरूरत नहीं है, मुझे मालो दौलत की जरूरत नहीं है, हमने जन्नत बनाया है और उसे बेचा भी है, तुम्हारा दिल देखना चाहता था, क्या तुम खरीद सकते हो कि नहीं? तुमने खरीद लिया है, जा, तेरे नाम का जन्नत, तेरे नाम का महल जन्नत में बन जाएगा। शायर क्या कहते हैं कि तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, दरअसल वो ज़मीन पर जन्नत बना रहे हैं, दरअसल वो ज़मीन पर जन्नत बना रहे हैं, दरअसल वो ज़मीन पर जन्नत बना रहे हैं। और एक से समाप्त फरमाइए कि वो 12 साल कश्ती, वो 12 साल डूबी, वो 12 साल डूबी, 12 की कश्ती, वो 12 साल डूबी, 12 की कश्ती, सरकार गौसे
सरकार गौस आज़म देखो तेरा रहे हैं। है मेरे दोस्तों, इसी तरह का एक वाक़या और है। एक मर्तबा गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। एक बुढ़िया उस किनारे पर बैठी हुई, यानी दरिया के किनारे, दरिया दजला के किनारे बैठी हुई रोजाना रोया करती थी। एक दिन गौसे आजम की नजर पड़ गई और गौसे आजम ने फरमाया, ए बुढ़िया, इस जगह तुम क्यों रोती हो? वो बुढ़िया कहने लगी, बेटा जा तू अपना काम कर। लेकिन वो गौसे आजम थे, वो ज़ईफ़ा को मालूम नहीं था। गौसे आजम फिर फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा, आखिर तुम्हारी रोने की वजह क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? वो ज़ईफ़ा कहने लगी, ए बेटा जा तू अपना काम कर, मुझे रोने दे। लेकिन गौसे आजम जो है जलाल में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा, जब तक तुम बताएगी नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, बता रोने की वजह क्या है? वो ज़ईफ़ा कहने लगी, सुनना चाहता है मेरा दर्द क्या है, मेरे अंदर तकलीफ क्या है, मैं किस परेशानी में हूँ, मैं यहाँ क्यों आके रोती हूँ, उसे सुनना चाहता है। तो सुन, आज से 12 साल पहले मेरा एक बेटा था जो बड़ी मुद्दतों के बाद अल्लाह ने मेरे आंगन में एक चांद उतारा और उस चांद को मैंने जब हासिल किया, उसको पाला पूसा, वो बड़ा हुआ, उसकी शादी दरिया के उस किनारे पर मैंने ठीक किया। उस तरफ दरिया के उस पार जो बस्ती है उस बस्ती में ठीक किया। ठीक आज से 12 साल पहले वो जब बारात लेकर के और कश्ती पर सवार हो गए, बाराती लेकर के उस पार पहुंचे हैं, लेकिन जब वहां से वापस आ रहे थे, बाराती उस कश्ती में मौजूद था, दुल्हन भी उस कश्ती में मौजूद था। ठीक जैसे ही बीचों बीच में कश्ती पहुंचा है, कश्ती ने समंदर में एक भंवर सा उठा है, तूफान उठा है, उस कश्ती को लेके डूब गया है। उस डूबने वाले कश्ती में मेरा बेटा भी था, मेरी बहू भी थी और 12 और उस कश्ती में बाराती भी थे। सबके सब लोग उसमें डूब गए हैं। मेरा चांद वहीं पे डूब गया, मेरी बहू वहीं पे खत्म हो गई, सारे बाराती वहीं पे डूब गए हैं। आज 12 साल का मुद्दत गुजर चुका है, 12 साल का अरसा हो गया है। मैं इसी जगह आती हूँ और रोया करती हूँ, दिल को सुकून मिलता है, दिल को इत्मीनान हासिल होता है, फिर मैं रो करके वापस चली जाती हूँ। है कोई दर्द तो है कोई दवा इस दर्द का तेरे पास जो बार बार पूछता है क्या हुआ क्या हुआ? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रब की बारगाह में हाथ उठा देते हैं और अर्ज़ करते हैं, ए परवरदिगार, तेरा गौस तेरी बारगाह में हाथ उठाया है, मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा और डूबी हुई कश्ती को बाहर अता फरमा। अचानक क्या देखते हैं, वो डूबी हुई कश्ती बाराती के साथ वापस निकल आती है। मेरे दोस्तों, जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ किए थे, उससे पहले 12 साल का अरसा गुजर गया था, एक ज़माना गुजर गया था। वो डूबी थी कश्ती, लोग भी डूबे थे, दूल्हा भी डूबा था, दुल्हन भी डूबी थी। उस बाराती को कोई मछली खा गया होगा, उस मछली को कोई और मछली खाया होगा, उस मछली को और कोई मछली खाया होगा। वो कश्ती डूब गई होगी, सड़ गया होगा, गल गई होगी, किसी की कोई वजूद उस पानी के अंदर नहीं है। लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने दुआ के लिए हाथ उठा दिया है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने फरमाया, ए पानी पलट, ए हवा पलट, ए मौसम पलट। अब उस मौसम को पलटाया जा रहा है। जो मौसम 12 साल पहले गुजरा था वो पानी को वापस लाया जाता है। जो पानी 12 साल पहले गुजरा था वो पानी वापस आता है, वो दरिया वापस आता है, वो हवा वापस आती है, वो मछली वापस आता है। और वापस आने के बाद अचानक क्या देखते हैं, वो बुढ़िया देखती है कि उसी पानी से एक कश्ती नमूदार होता है, उसमें बाराती मौजूद है, उसमें बेटा भी मौजूद है, उसमें बहू भी मौजूद है। मेरे दोस्तों, गौस पाक ने जो ही दुआ के लिए हाथ उठाया था, अल्लाह ने 12 साल दुनिया को पीछे कर दिया। वही पानी आ गई, वही पानी आया है, वही दरिया आया है, वही समंदर आया है जो कश्ती को लेके डूबा था, और वही मछली फिर आई है और जिसने कश्ती को इंसानों को खाया था। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर दुआ कर दे तो दुनिया 12 साल पीछे चली जाती है।
और डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल देती है। ये गौसे आजम की दुआ की बरकत है। आला हजरत फरमाते हैं वो डूबी थी कश्ती दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। वो डूबी थी कश्ती दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम अता फरमाया है, वो मर्तबा अता फरमाया है, वो बुलंदी दिया है, वो शान और शौकत दिया है कि अगर दुआ कर दे तो दरिया जो है 12 साल पहले जो बह के पानी निकला था उस पानी को वापस कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला गौस पाक की दुआ को कबूल फरमाया और डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मदरसे में बैठे हैं, अपने हुजरे में है। एक मुरीद आया और कहने लगा, हुजूर कल दावत आपकी मेरे यहाँ है, कल अफ्तार की दावत मेरे घर में है। इतने में दूसरे मुरीद आते हैं, उन्होंने कहा हुजूर कल अफ्तार की दावत मेरे घर में है। इतने में तीसरे लोग आए और कहने लगे हुजूर कल इफ्तार की दावत मेरे घर में है। इतने में चौथे आते हैं, कहते हैं हुजूर कल इफ्तार की दावत मेरे घर में है। इतने में पांचवें आते हैं, छठे सातवें, एक के बाद दीगर 70 मुरीद आया है और 70 मुरीदों ने एक वक्त की दावत दिया है। और गौसे आजम फरमाते हैं जाओ घर, यकीनन मैं इफ्तार में शामिल हो जाऊंगा, दावत तुम्हारी कबूल करता हूँ। जब वो दिन आया है, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मुरीद के यहाँ पहुंच जाते हैं। वो मुरीद जिसने पहले दावत की थी उस मुरीद के यहाँ भी इफ्तार में पहुंचते हैं। दूसरे मुरीद के यहाँ भी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, एक के बाद दीगर एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ मेरे गौस पहुंचते हैं और इफ्तार की दावत करके खाना खा के वापस आते हैं। सुबह सूरज निकलता है, मुरीद आते हैं, खानका पहुंचता है। एक मुरीद ने दूसरे से कहा जानते हो गौसे आजम कल मेरे यहाँ शाम को इफ्तार में दावत में थे। दूसरे ने कहा तुम झूठ बोलते हो, गौसे आजम मेरे यहाँ इफ्तार में थे। इतने में तीसरे आया और कहा कि तुम दोनों झूठ बोलते हो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कल मेरे यहाँ इफ्तार में थे। इतने में चौथा आया, पांचवा आया, एक के बाद दीगर 70 मुरीद आया है और सब एक दूसरे को झूठे कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सब के सब झूठ बोलते हो, गौसे आजम तो कल इफ्तार में मेरे यहाँ थे। इतने में गौस पाक के मदरसा से बच्चा बाहर निकलते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए लोगों ये शोरगुल कैसा है, ये भीड़ कैसी है, ये हंगामा कैसा है। लोगों ने कहा मैं ये कहता हूँ गौस पाक कल दावत में मेरे घर में इफ्तार में थे। उन्होंने कहा मेरे यहाँ, उन्होंने कहा मेरे यहाँ, उन्होंने कहा मेरे यहाँ, उन्होंने कहा मेरे यहाँ। एक के बाद दीगर 70 मुरीदों ने कहा मेरे घर में थे। गौस पाक के मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कह रहा है कि लोगों तुम सब के सब झूठे हो, कल गौस पाक कहीं नहीं गए हैं बल्कि मदरसा में अपने हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। इतने में गौसे आजम तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ मुरीदो क्यों हंगामा करते हो, ये शोर कैसी मच रही है, ये भीड़ कैसी लगी है। मुरीदों ने कहा हुजूर कल दावत में मेरे घर में थे, मेरे घर में थे, मेरे घर में थे। गौसे आजम फरमाते हैं इसमें हैरत की बात क्या है, वो देखो सामने खानका के सामने एक दरख्त है, उस दरख्त पर देखो, उसके पत्तों पर देखो। जो ही मुरीदों ने पत्तों पर देखा है गौसे आजम हर पत्ते में नजर आते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए मुरीदो तुम क्या समझते हो, एक वक्त में 70 के यहाँ जाना हैरत की क्या बात है। तुम देखो पेड़ पर, तुम देखो गाछी पर, तुम देखो दरख्तों के हर पत्ते पर मैं नजर आने लगा हूँ, मुझे दिखाई देता है। मुरीदों ने देखा कि उस गाछ के पत्ते पर, उस पेड़ के पत्ते पर गौसे आजम हर पत्ते पे नजर आते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कादरी कर कादरी रख, कादरी मैं यूं उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे दोस्त गौसे आजम फरमाते हैं ऐ लोगों ये हैरत की बात क्या है,
अगर एक वक्त में मैं 70 मुरीदों के यहाँ चला गया तो इसमें हैरत की बात क्या है? देखो उस पेड़ के ऊपर, उसके पत्तों में नजर डालो, हर पत्ते में मैं नजर आ रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये गौस को अल्लाह ने वो कमाल, वो खूबी अता फरमाया है। तमाम वलियों का शहंशाह गौस आजम को बनाया गया है, तमाम वलियों का सरदार गौस आजम को बनाया गया है। जिस वक्त गौस आजम फरमा रहे थे कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है, उस वक्त संजर की जमीन पर एक आवाज उठी थी और वो आवाज ये थी, ए गौस आजम, आपका कदम सर पर क्यों? ये दिल भी, ये जिगर भी, ये आंखें हैं, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौस आजम। गौस आजम जब फरमाए कि लोगों मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है, उस वक्त संजर की जमीन पर खरसान के खेत में ख्वाजा गरीब नवाज थी और ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ मेरे गौसे पाक, हमने आपकी आवाज को सुना है, आपका गर्दन सिर्फ मेरे सर पर नहीं बल्कि मेरे दिल में भी है, मेरी आंखों में भी है, ये जिगर है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। मेरे दोस्तों, गौसे आजम को अल्लाह ने तमाम वलियों का सरदार बनाया है। एक मर्तबा गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खानका में या बगदाद के सरजमीन पर किसी जगह तकरीर फरमा रहे थे। उधर से एक रास्ता था, लोग गुजर रहे थे, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, वाज बयान कर रहे हैं, बयान करते करते मेराज का वाक़या बयान करने लगे। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों देखो, मेरा नबी एक ही लम्हा में, एक ही वक्त में जमीन से आसमान, आसमान से सातों आसमान, उसके बाद लामका रब का दीदार करके आया है। एक ही लम्हा में जंजीर हिल रही थी, पानी गर्म था, बिस्तर पानी बह रहा था, बिस्तर भी गर्म था और मेरे नबी मेराज से चले भी आए। उधर से एक यहूदी का गुजर हुआ, यहूदी ने कान लगा के सुना और कहा कि ये क्या बोल रहे हैं, मुसलमानों के बड़े पीर ये क्या कह रहे हैं कि एक ही वक्त में एक इंसान भला जमीन से आसमान, आसमान से दूसरे आसमान, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें आसमान तक गए और वहां से लामका गए और खुदा का दीदार करके फिर दुनिया में आए। तो यहूदी ने कहा कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इंसान भला एक ही वक्त में, एक ही लम्हा में सातों आसमान का सफर कैसे कर सकता है और लामका में जाके जमीन पे कैसे आ सकते हैं? ये सब बकवास है। उन्होंने आलतू फालतू बका और बकने के बाद वहां से चल दिया और चलने के बाद दरिया दजला पे पहुंचा। दरिया दजला में पहुंचने के बाद अपना कपड़ा उतारा और किनारे पे रख दिया और दरिया में उतर गया, डुबकी लगाया। डुबकी लगाने के बाद जो ही पानी से सर बाहर निकाला है, क्या देखता है कि वो दरिया नहीं है, वो समंदर नहीं है, वो जगह भी नहीं है, वो मुल्क भी नहीं है, वो खुद मैं भी नहीं हूं। वो यहूदी क्या देखा कि जिस दरिया के किनारे मैंने कपड़ा रख के डुबकी लगाया था, पानी से सर को बाहर निकाला है, क्या देखता है कि वो दरिया नहीं है, वो पानी नहीं है, वो समंदर नहीं है, वो मुल्क नहीं है, वो इंसान नहीं है और वो खुद वो भी नहीं है। वो क्या हो गया? एक हसीनो जमीन लड़की बन गया, एक खूबसूरत लड़की बन के पानी में खड़ी है। अब वो हैरत में है कि या अल्लाह ये क्या हो गया। वो हैरत में पड़ गया कि मैं किस फेर में पड़ गया। अरे मैं तो आया था, मर्द था, पानी में उतरा, वो दरिया दजला था, लेकिन पानी से बाहर आया तो वो मैं नहीं हूँ, वो पानी नहीं है, वो शहर नहीं है, वो दुनिया नहीं है, मैं अलग दुनिया में आ गया हूँ, लड़की बन गया हूँ। आखिर वजह क्या है? इतने में एक बादशाहज़ादा, एक बादशाह का बेटा अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उसी दरिया में आया।
آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ دریا کے اندر ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے. وہ بادشاہ کا بیٹا کچھ دیکھا نہیں, سیدھے گھوڑے کو پانی میں ڈالا اور یہ چلاتے رہا, کہہ رہے رکو پہلے کپڑا پھینکو تب آنا اندر. وہ بادشاہ کا بیٹا جو ہے کپڑا پھینکا ہے, وہ اپنے سطر کو چھپایا ہے, اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا اسے اٹھایا ہے, اپنے گھوڑے پہ سوار کیا ہے, اپنے گھر لے گیا ہے. وہ لاکھ چلاتے رہ گیا, ارے سنو تو کم سے کم میں لڑکی نہیں ہوں, میں لڑکا ہوں, لڑکا میں انسان ہوں, میں لڑکا ہوں, لڑکی نہیں. لیکن وہ بادشاہ کا بیٹا کچھ سنا نہیں, اپنے گھر میں لے گیا, اپنے محل میں لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا, اس سے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے, 3 یا 4 بچہ بھی پیدا ہوتا ہے. وہ لڑکی 3-4 بچہ پیدا کرنے کے بعد, جنم دینے کے بعد ایک دن پھر اسی دریا میں غسل کرنے کے لیے آ رہی ہے اور کپڑا اتار کے دریا کے کنارے رکھی ہے, بغل میں کپڑا اتار کے رکھی اور ڈبکی لگائی. اور جو ہی پانی میں ڈبکی لگائی ہے اور پانی سے سر باہر کیا ہے, دیکھتا ہے کہ وہی میں ہوں, وہی کپڑا ہے, وہی شہر ہے, وہی گاؤں ہے, وہی علاقہ ہے, وہی دنیا ہے. پہلے لڑکی بنی تھی, اب لڑکا بن گیا ہے, اور لڑکا بنا ہے فوراً پانی سے باہر آیا ہے اور اپنے گھر میں آیا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ میری بیوی جہاں پہ بیٹھی تھی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اپنی بیوی سے کہنے لگی, اے میری بیوی کیا تم نے کام کر لیا ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی, ارے تم نے تو کہا تھا دریا دجلہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں, ارے تم اب تک دریا میں نہانے کے لیے نہیں گیا. اس نے کہا, ارے میری بیوی سنو, وہ دریائے دجلہ میں نے غسل بھی کر لیا اور لڑکی بھی بن گیا اور لڑکی سے لڑکا بھی بن گیا. ایک مدت گزر گیا, اس کی بیوی کہتی ہے, ارے یہ کیا بک رہے ہو, یہ کیا بک رہے ہو؟ یہودی نے کہا, اے میری بیوی اب بکنے کا وقت نہیں ہے, اب کہنے کا وقت نہیں ہے, سننے کا ٹائم نہیں ہے. اے میری بیوی چلو بڑے پیر کے ہاں, بڑے پیر کے بارگاہ میں, مسلمانوں کے بڑے پیر کی بارگاہ میں چلو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. ابھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے اور بڑے پیر کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ بڑے پیر وہی مجلس ہے, وہی تقریر ہو رہی ہے. بڑے پیر معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. غوث اعظم نے فرمایا, ارے معراج کا واقعہ کسی کو سمجھنا ہے تو اس یہودی سے سمجھ لو, اس سے سمجھ لو معراج کا واقعہ کیا ہے. یہودی نے کہا, اے میرے آقا غوث اعظم اب سننے یا سمجھنے کا وقت نہیں ہے, ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے. میرے دوستو ذرا دیکھو غوث اعظم کی کرامت. اس نے کہا تھا کہ اگر معراج کا واقعہ غوث اعظم بیان کر رہے تھے, یہودی نے کہا یہ سب بکواس ہے, لیکن وہ یہودی نہانے کے لیے اترا ہے, دریا میں اترا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت مرد سے عورت بن گیا. عورت بننے کے بعد شادی بھی ہوئی, بچہ بھی پیدا ہوا, واپس آیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ غوث اعظم وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں, وہی مجلس ہے, وہی لوگ ہیں, وہی غوث اعظم ہے, وہی جگہ ہے. ایک ہی لمحہ میں سالوں سال اس یہودی کا بیت گیا ہے اور دنیا کے لوگوں کے لیے ایک لمحہ گزرا ہے. ایک ہی لمحہ میں وہ یہودی عورت بھی بن گئی ہے اور بچہ بھی پیدا کیا ہے اور واپس آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی وقت ہے, وہی تقریر ہے, وہی محفل ہے, وہی غوث اعظم ہے, وہی بیان کر رہے ہیں. اس نے کہا, اے غوث اعظم اب ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے اور مسلمان میں داخل کر لیجئے. میں سمجھ گیا معراج کا واقعہ کیا ہے, میں خوب سمجھ گیا. میرے دوستو غوث اعظم کی کرامت ہے, غوث اعظم کی کرامت. جو انکار کرتا ہے غوث اعظم اسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتے ہیں. تو میرے دوستو اب درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیع اللہ.